Hello, my dear student. I am Professor Harshal B. Nikam from Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. From this lecture, we are going to start our next unit, which is based on power amplifier. This power amplifier is also called as large signal amplifier or high power amplifier. From this unit, in this lecture, we are going to start a topic number 2.1, which is based on comparison between small signal amplifier and power amplifier, and also the performance parameter of power amplifier. So let's start with our course. So let's start with our course outcome, that is the very first CO here. It is use BJT as a high power amplifier and its PO mapping is here. This course outcome is mapped with this program outcome. The PO and CO mapping is this. PO number 1 is mapped with course outcome at level 1. PO2 is mapped at a level 3. PO3 is mapped with course outcome at a level 3. PO4 is mapped with course outcome at a level 2. Similarly, PO10 is mapped with course outcome at a level 1. Here, PO1 is basic knowledge, PO2 is discipline knowledge, PO3 is experiment and practice, and PO4 is here its engineering tools, and similarly PO10 is lifelong learning. Here some learning outcome of this particular lecture means after completing this lecture the student may able define power amplifier. Second, compare small signal amplifier and large signal power amplifier. Third, calculate efficiency of high power amplifier. Write application of power amplifier. So, after completion of this lecture, आप सभी लोग एम्पलीफायर को यानी पावर एम्पलीफायर को डिफाइन कर सकते हो. स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़े उसके साथ लार्ज सिग्नल का कंपैरिजन कर सकते हो. पावर एम्पलीफायर की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो और पावर एम्पलीफायर के एप्लीकेशन भी लिख सकते हो. Before going to in detail about the high power amplifier, you must need some prerequisite knowledge. मतलब आपको ट्रांजिस्टर और उसके टाइप्स के बारे में पता होना ज़रूरी है और जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा दैट इज़ बेस्ड ऑन लो पावर एम्पलीफायर उसी के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है. लो पावर एम्पलीफायर सर्किट में हमने आरसी कपलिंग के बारे में पढ़ा, डायरेक्ट कपलिंग के बारे में पढ़ा, उसी तरह ट्रांसफॉर्मर कपलिंग के बारे में भी पढ़ा. ये तीनों टेक्निक्स आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है. Here it is the definition of power amplifier and it is very important as far as your high power amplifier is concerned or as far as your exam point of view. Power amplifier means it is the device which amplify the power or current and also generate sufficient power for the load called as power amplifier. It is also called as large signal और high power amplifier. पावर एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट और पावर को एम्पलीफाई करता है. अगर करंट और पावर अगर एम्पलीफाई होते हैं तो लोड को जितना पावर चाहिए उतना पावर अपन पावर एम्पलीफायर के द्वारा जनरेट कर सकते हैं. इस पावर एम्पलीफायर को हम
लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं या फिर अपन हाई पावर एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं। The next important topic is comparison of small signal and large signal power amplifier. हमने फर्स्ट यूनिट में स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा। स्मॉल सिग्नल का मतलब होता है लो सिग्नल, तो लो पावर एम्पलीफायर इसके आधार पे हमारा फर्स्ट यूनिट था। और अभी अपन पढ़ रहे लार्ज पावर एम्पलीफायर के बारे में, जिसको अपन बोल सकते हैं हाई पावर एम्पलीफायर। तो इन दोनों एम्पलीफायर का कंपैरिजन होना ज़रूरी है। तो अपन कौन कौन से पैरामीटर पे कंपेयर कर सकते हैं वह हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे इस कॉलम में हमने दिए गए हैं पैरामीटर। यहाँ पे दिया गया है हमने स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर और यहाँ पे हमने दिया है लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। तो वेरी फर्स्ट पैरामीटर इज क्वांटिटी एम्पलीफायर, मतलब स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर कौन से सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, यानी कौन सी क्वांटिटी एम्पलीफाई करेगा। तो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में जो क्वांटिटी एम्पलीफाई होती है वो है वोल्टेज। लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर में जो क्वांटिटी एम्पलीफाई होती है वो है करंट एंड पावर। अभी यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर है वो है अपना साइज ऑफ इनपुट। अभी अपन स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर की अगर बात करेंगे तो उसका जो इनपुट रहेगा वो रहेगा स्मॉल, और लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर में जो इनपुट रहेगा वो रहेगा लार्ज। उसी तरह से जो अपना थर्ड पैरामीटर है वो है पावर ट्रांजिस्टर। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में पावर ट्रांजिस्टर की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नॉट रिक्वायर्ड। बट लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर में जिसमें अपना जो इनपुट है वो इनपुट लार्ज रहने वाला है, इसीलिए लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर में पावर ट्रांजिस्टर की जरूरत होती है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पैरामीटर है अपना पावर हैंडलिंग। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में ज़्यादा पावर हैंडलिंग नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा लो। लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर में ज़्यादा पावर की हैंडलिंग कैपेबिलिटी होने की ज़रूरत है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हाई। यानी स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में पावर हैंडलिंग लो होता है और लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर में पावर हैंडलिंग हाई होता है। उसी तरह से हीट सिंक, नेक्स्ट पैरामीटर है अपना हीट सिंक। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में पावर हैंडलिंग लो होता है, इसलिए यहाँ पे हीट सिंक की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नॉट रिक्वायर्ड। लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर में पावर हैंडलिंग ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब करेगा जिसको अपन हीट सिंक बोलते हैं उसकी ज़रूरत रहेगी। नेक्स्ट पैरामीटर है अपना करंट गेन। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर का करंट गेन लो होता है, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर का करंट गेन होता है हाई। लास्ट पैरामीटर है अपना इनपुट रेजिस्टेंस। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर का इनपुट स्मॉल रहेगा, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर का इनपुट रहेगा लार्ज। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ स्मॉल सिग्नल एंड लार्ज सिग्नल पावर एम्पलीफायर। ये जो कंपैरिजन है ये एम्पलीफायर के नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप सभी को स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर और लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर में क्या कम डिफरेंस होता है वो अच्छी तरीके से याद होना और अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एज पर एज योर हाई पावर एम्पलीफायर इज कंसर्न। इफिशियंसी कैलकुलेट करना हाई पावर एम्पलीफायर की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी से अपने को पता चलेगा कि अपना हाई पावर एम्पलीफायर अपन कितना इनपुट दे रहे और वो अपने को आउटपुट कितना मिल रहा है, यानी वो कितना सक्षम है आउटपुट जनरेट करने के लिए, ये हमको पता चलेगा इफिशियंसी से। तो इफिशियंसी क्या है ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अपन सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे। सी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ efficiency. Efficiency of the power amplifier is defined as the ratio of maximum AC output power to the DC input power. Efficiency ये आउटपुट का मतलब मैक्सिमम AC आउटपुट पावर का और DC इनपुट पावर का रेशो होता है। ओके, तो इफिशियंसी मतलब
वो कितना सक्षम है अपना आउटपुट जनरेट करने के लिए। ये अपने को किससे पता चलेगा? अपने को रेशो लेना पड़ेगा किसका? मैक्सिमम एसी आउटपुट पावर का, यानी एम्पलीफायर का जितना भी मैक्सिमम आउटपुट रहेगा, आउटपुट पावर रहेगा, और वो भी कैसे? एसी, इसका, और अपन कितना डीसी इनपुट दे रहे हैं इसका रेशो मतलब होगा इफिशियंसी। तो इफिशियंसी अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसका फार्मूला भी है अपने पास, और वो फार्मूला है सी। इफिशियंसी हमेशा अपन परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द साइन ऑफ परसेंटेज, एंड दिस इफिशियंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ईटा। ये जो सिंबल है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको अपन ईटा बोलते हैं। नाउ ईटा इक्वल टू पीओ, ब्रैकेट में लिखा है एसी, अपॉन पी आई, ब्रैकेट में लिखा है डीसी। मतलब पीओ मतलब होता है आउटपुट पावर, और ये पी आई मतलब होता है इनपुट पावर। तो यहाँ पे अपन ने मेंशन किया था मैक्सिमम एसी आउटपुट पावर, तो ये है अपना मैक्सिमम एसी आउटपुट पावर टू द डीसी इनपुट पावर, और ये है अपना डीसी इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100%। मतलब इफिशियंसी हमेशा अपन किसमें कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज में। The very important definition regarding high power amplifier, that is voltage gain. ये voltage gain हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा है लो पावर एम्पलीफायर के लिए, बट यहाँ अपने को वोल्टेज गेन पढ़ना है हाई पावर एम्पलीफायर के लिए। तो डेफिनेशन यहाँ पे भी सेम ही है जैसे हमने लो पावर एम्पलीफायर में पढ़ा। Voltage gain means voltage gain of the power amplifier is defined as the ratio of output voltage to the input voltage। तो यहाँ पे भी voltage gain मतलब रेशो होता है, बट किसका? आउटपुट वोल्टेज का टू द इनपुट वोल्टेज, एंड दिस voltage gain is always represented by AV। A means it is gain and voltage means it is represented by here V। The next important point is application of power amplifier। हाई पावर एम्पलीफायर जिसको अपन बोलते हैं पावर एम्पलीफायर, वो कहाँ पे यूज होता है ये अपने को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन इज इट इज यूज इन रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर जहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल अपने को रिसीव करना है, उस रिसीवर सर्किट में अपन हाई पावर एम्पलीफायर का यूज करेंगे। नेक्स्ट इट इज यूज इन पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जहाँ पे अपने को पब्लिक को संबोधित करना है, उसके लिए जो भी सिस्टम लगेंगी, एम्पलीफायर सिस्टम लगेंगी, वो सिस्टम में अपन हाई पावर एम्पलीफायर यूज करेंगे। इट इज़ यूज इन टीवी रिसीवर। टीवी को जो भी सिग्नल की ज़रूरत होती है उसको रिसीव करने के सर्किट में अपन हाई पावर एम्पलीफायर का यूज करेंगे। इट इज़ यूज इन सीडी प्लेयर। सीडी प्लेयर आप सभी लोग जानते हो, उसके एम्पलीफायर सर्किट में भी अपन हाई पावर एम्पलीफायर का यूज करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द some basic introduction related to the high power amplifier. Here we summarize our today's lecture. So after completion of this lecture, you all are learn about very well, and you are able to define now a power amplifier. Compare small signal and large signal power amplifier. Calculate efficiency of high power amplifier. Write application of power amplifier. This is all about the today's lecture. तो इतने पॉइंट आज हमने इस लेक्चर में देखे। In going to discuss about classification of power amplifier and its types. Thank you so much, and happy learning.